Good morning students and welcome once again in the Shivaji Group of Institutions online classes. Students, we are in the chapter relation and function, and in my previous video I start the exercise 2.3 and solve the problem up to 2 number. Now today I am going to discuss the remaining problem of that exercise. So the third problem is f equal 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 7 is a function. This is a function. If it is defined as f equal to ax plus b, then find a and b. So students, ये हमारे पास एक f दिया हुआ है. We have given f equal 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 7. तो यहां से दिख रहा है 1 1 से रिलेट कर रहा है, 2 3 से रिलेट कर रहा है, 3 5 से रिलेट हो रहा है, 4 7 से एसोसिएट हो रहा है. सो स्टूडेंट, जो हमारे पास किसी भी रिलेशन, एक तरह से अपनी रिलेशन है, हमको इसको फंक्शन है या नहीं ये चेक करना है. तो किसी भी रिलेशन के जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं वो फर्स्ट सेट के होते हैं. तो यहाँ पर हम लोग देखें, इसको अगर हम लोग डिफाइन कर दें थोड़ा सा ऐसे. फर्स्ट एलिमेंट कंपोनेंट 1 2 3 4 and second component 1 3 5 7. So students, taken that this is associated with 1, so this is 1, 2 is associated with 3, 3 is associated with 5 and 4 is with 6. So students, every element of this set a b, every element of this set is associated with a unique element in set b. So this is a function. Since this f satisfies all the condition of function, that is every element of A as an unique element, unique image in B. So f is equal to 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 7 is a function. So students, ये हमारे पास एक फंक्शन. जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं फंक्शन के, वो डोमेन होते हैं, मींस x की वैल्यूज होती हैं, और जो बाद वाली वैल्यूज होती हैं वो एक तरह से fx की वैल्यू होती है और y की वैल्यू इमेज होती है. तो फर्स्ट कंपोनेंट आर कॉल्ड डोमेन, दैट इज 1 2 3 4, दिस इज डोमेन, और वी कॉल x वैल्यूज ऑफ x, एंड द सेकंड एलिमेंट इज द वैल्यू ऑफ f, that is corresponding value of f. So now students, since fx is defined as f equal to ax plus b, since fx is equal to ax plus b, so take first x as 1, so given at x equal to 1, f1 equal to 1. तो यहाँ पर करेंगे स्टूडेंट्स, तो f1 is equal to क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a into 1 plus b, and f1 is what 1, so 1 equal to a plus b. क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि x जब 1 ले रहे हैं तो 1 की इमेज क्या बन रही है, 1 बन रही है. तो स्टूडेंट जब x 1 ले रहे हैं तो fx कितनी आ रही है, f1 कितनी आ रही है, 1. यहाँ पर f1 की जगह 1 रख देंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई. सिमिलरली 2 की इमेज कहाँ पर बन रही है, 3. व्हेन x इक्वल टू, देन f2 इज इक्वल टू 3. 2 की इमेज स्टूडेंट्स 3 पर यहाँ पर दिख रही है. अब यहाँ पर x लिखेंगे तो यहाँ पर कर देंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम फर्स्ट, सो फ्रॉम गिवन, सो f2 इज इक्वल टू a2 into a plus b, and f2 is what, 3. So 2a plus b is equal to 3. Question number 6. Now solve these two equations students.
सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। सो a plus b equal to 1, this is 2a plus b is equal to 3, subtract, minus minus minus, this will cancel out, so minus a is equal to minus 2, so this is a equal to 2, and when we put a equal to 2 in here, then b is equal to 1 minus 2 minus b is equal to minus. So this is the values of a and b. So students, this is the answer. Now find the domain of the following functions. These are some functions and we have to find the domain of the following. Students, you already know that what is domain. Students, domain of any function is the values of x for which function is defined. x की वो values जिससे कि वो function क्या हो रहा हो, define हो रहा हो, defined हो function, उसको हम लोग domain बोलते हैं। एक तरह से जो हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है फंक्शन का वो डोमेन। तो स्टूडेंट आप फंक्शन में गिवन है अगर डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। अब इसका बच्चों डोमेन, वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। सो यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स फॉर डोमेन। Remember two things. That denominator always not equal to 0. डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, if there is any function, then rule then this will always greater than 0. If रूट का जो फंक्शन है if function of x, रूट का जो फंक्शन है is in numerator, then this should be equal greater than equal to this. तो हमें इन तीन चीजों को ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जो भी है उसको 0 इक्वल नहीं होना है। सेकेंडरी थिंग ये है कि अगर रूट के अंदर कोई फंक्शन है x का डिनोमिनेटर में, रूट के अंदर, तो हमारे पास या रूट के अंदर कुछ भी है, फंक्शन हो x का या कुछ भी है स्टूडेंट्स, यानी फंक्शन ऑफ x और समथिंग एल्स, तो रूट के अंदर कोई भी है तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर ये रूट का फंक्शन रूट के अंदर का जो भी है वो न्यूमरेटर में है, ऊपर है, तो फिर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल 0 भी बन जाएगा। ये तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव टू फाइंड डोमेन। सो फॉर डोमेन, here denominator should always greater than equal 0. So denominator always not equal 0. तो इसको हम क्या करेंगे, 6 स्क्वायर माइनस 8x प्लस, डोमेन निकालने के लिए इसमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है, इसके लिए फंक्शन डिफाइन। तो फंक्शन डिफाइन होने के लिए ये क्या होगा, ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब ये 0 के इक्वल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये नॉट इक्वल 0 कर दिया, इसको फैक्टर कर लेते हैं। माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 6 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। सो x माइनस 6
x minus 2 not equal to 0, it means x not equal to 6 or x not equal to, तो x 6 पर और 2 पर x की वैल्यू जब 6 होंगी और 2 होंगी तो हमारे पास उस पर वो डिफाइन नहीं होंगी, ये वैल्यू नहीं हो सकती फंक्शन के डोमेन में। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको देखते हैं। अब इसको देखिए नंबर लाइन पे आप देख लेंगे, अब नंबर लाइन कहां से कहां तक स्टार्ट होगी, माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट। अब यहाँ पर 2 और 6 है, 2 दिस इज 6। अब यहाँ पर जब हम लोग 2 और 6 पर ये वैल्यू नहीं होंगी, इन वैल्यूज को छोड़ देंगे, इन पर चूंकि अगर 2 रखेंगे यहाँ पर तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा और 6 रखेंगे तो अनडिफाइंड, तो डोमेन में ये नहीं आएगा। बाकी ये पूरा हमारे पास डोमेन में ये वाला पार्ट डोमेन वाला पार्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट डोमेन वाला पार्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट, ये पॉइंट हमारे पास डोमेन में नहीं होंगे। सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ f? सो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, वैसा ओपन इंटरवल लगता है टू 2, बिकॉज 2 को इंक्लूड नहीं करना है इसलिए ओपन इंटरवल लग जाएगा स्टूडेंट्स। यूनियन 2 to 6, 2 को इंक्लूड नहीं करना ओपन इंटरवल लगेगा, 6 को इंक्लूड नहीं करना ओपन इंटरवल लगेगा, एंड 6 to इनफाइनाइट, यूनियन 6 to, ये इसका डोमेन। और इसको आप अदरवाइज इस तरह लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू, पूरे रियल नंबर में ये दोनों पॉइंट हटा दो तो रियल नंबर में r माइनस 2, 6, 2 और 6 को हटा करके जो भी हमारे पास सेट बचेगा, x के जो एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे पास डोमेन। तो स्टूडेंट्स या तो आप इस फॉर्म में लिख लीजिए या ये इसका डोमेन। तो डोमेन निकालने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी। डोमेन हमेशा x की वैल्यूज होती हैं, x की वो वैल्यूज, दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन शुड बी डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। Thank you students. Now students, second problem students, second, find the domain of fx equal x upon under root x square minus 3x plus 2। अब यहाँ पर न्यूमरेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, न्यूमरेटर कोई पॉजिटिव वैल्यू हो नेगेटिव वैल्यू हो जीरो हो, उससे क्योंकि फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। अब यहाँ पर मेन चीज होता है, यहाँ पर आपको देखना है डिनोमिनेटर में जो है वो क्या है, किस फॉर्म में है। तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, सो इट मींस रूट फॉर्म में है, वेयर रूट के अंदर जो भी होगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वो ग्रेटर देन 0। सबसे पहले देखिए ग्रेटर देन, इक्वल भी नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो इक्वलिटी अगर लगा देंगे तो फिर इक्वलिटी में ये 0 को अगर कर देंगे इसको हम तो फिर ये पूरा डिफाइंड हो जाएगा। डिफाइंड नहीं होगा स्टूडेंट्स फंक्शन, तो यहाँ बस ग्रेटर देन लगेगा। नाउ स्टूडेंट्स फैक्टर करते हैं इसके, माइनस का 2x एंड माइनस x plus 2 is greater than 0. This gives common x minus 2 and minus 1, x minus 2 greater than 0. So x minus 2, x minus 1 greater than 0. ये हमारे पास x minus 2 to x minus 1 greater than 0 आएगा। इसको अगर हमारी वाली से लिखते हैं इम्प्लाइज, और ये 0 भी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये 0 भी नहीं होना चाहिए, टोटल वाला पार्ट 0 भी नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें क्या होगा, 2 और 1 आ गए, तो यहाँ पर 2 और 1 को फैक्टर 2x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा एंड और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, इधर माइनस इनफाइनाइट स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू रखते हैं, 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू यहाँ पर रखते हैं इसमें, तो यहाँ
यहाँ पर 1 और 2, 1 मान लीजिए हमने इसमें रख दिया 1.5, देन 1.5 minus 2 and 1.5, this is positive, this is negative, negative positive, this is negative, this is negative। अब ये क्वाड्रेटिक है स्टूडेंट, तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। सो स्टूडेंट्स, तो अब x लेस देन 1 और x ग्रेटर, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिफाइंड नेगेटिव अगर इसको ले लेंगे, इस चीज को अगर नेगेटिव ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। रूट के अंदर की चीज हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, रूट के अंदर की चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, और अगर हम x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में ले लेते हैं तो फिर ये हमेशा क्या रहेगा, हमेशा जो है अनडिफाइंड हो जाएगा स्टूडेंट्स, से पॉजिटिव नहीं होगा, रूट के अंदर पॉजिटिव की इमेज नहीं बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, तो इसका डोमेन क्या आ गया, डोमेन हमारा ये पॉइंट ध्यान देंगे 1 और 2 के बीच नेगेटिव हो रहा है, सो डोमेन खाली हमारा कौन सा, डोमेन ऑफ f is equal to minus infinite to 1 union 2 to infinite, or you can write domain of f is equal to all those x such that x is less than 1 or x is greater than। तो अगर 2 से ज़्यादा वैल्यू रखोगे, जैसे आप 3 रखते हो तो 3 माइनस 2 3 पॉजिटिव दे देगा, और 3 से कम और 1 से कम वैल्यू रखते हो तो भी ये पॉजिटिव दे देगा स्टूडेंट्स। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में है तो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसकी वैल्यू ऐसी x की वैल्यू रखो जिससे कि पॉजिटिव हो जाए, तो यही वैल्यूज होंगी x की जो कि 1 से लेस की तरफ और 1 से 2 से ग्रेटर देन की तरफ रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, तो फंक्शन डिफाइन रहेगा। तो यही इसका, दिस इज द डोमेन ऑफ x। Now students, fourth problem, f(x) equal under root x minus 1 3 minus x। So students, see this problem here, there is no denominator, यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है स्टूडेंट्स, तो हमें फिर न्यूमरेटर में ही चेक करना है क्या है। तो अब अगर ये फंक्शन इक्वल्स नहीं है, मान लीजिए दिस इज नो देयर इज नो दिस फंक्शन, सो f(x) equal 3 minus x, so you can take any value of x, positive, negative or 0, and the value of f(x) is finite, that is function is defined। Now here there is a function within root in numerator, so here x minus 1 is always greater than 0, क्योंकि अगर 0 भी होगा तो इसको ले लेंगे तो फिर ये फंक्शन 0 हो जाएगा जो कि डिफाइंड है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम x minus 1 greater than 0 सेट कर लेंगे, तो वी हैव टेक x minus 1 is greater than 0, so here x is greater than 1। सो अब यही इसका डोमेन होगा कि x की वैल्यू 1 से जितनी भी बड़ी होगी, 1 या 1 से ज्यादा जितनी भी होगी, greater than 1 or equal 1, the function is defined। So students, domain of f is equal to x such that x is greater than 1, x is greater than 1, x belongs to real। So this is the domain of this given। So students, from this example 4, this problem number 4, you have to knowledge about how you can find the domain of given function। So students, now students, find the domain and range of the following functions। Fifth problem, first, mod x plus y is equal to 0। So students, given mod x plus y is equal to 0 means y is equal to minus mod x, this is, and y is what is y is function f(x)। so यहाँ पर जब हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे तो डोमेन x की those values of x for which function or y is defined or a finite value। so since for all x
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर x पूरा जो है जिसके लिए फंक्शन x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन y जो है वो रियल वैल्यू दे, क्या दे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर y is defined. So the domain of R is equal to, अब y is defined, अब domain of R, यहां पर देखिए पॉजिटिव x है, x और डोमेन हम किसी ले सकते हो, आपने दिया है सेट ऑफ। अब स्टूडेंट्स रेंज थोड़ा डिफरेंट होता है डोमेन से, स्टूडेंट्स रेंज डिफरेंट तरीके से थोड़ा फाइंड आउट किया जा सकता है, आपको प्रैक्टिस से जिस तरह का फंक्शन होगा उस तरीका से उसको हम लोग रेंज निकाल पाएंगे। तो थोड़ा समझ लें, जो हमारे पास x की वैल्यूज निकलती है इस डोमेन के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज बनती है वही तो रेंज होती है स्टूडेंट्स। जो भी y की वैल्यू आएगी x डोमेन के एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी y की वैल्यूज आएंगी वही उसका सेट जो बनेगा वही उसका रेंज होगा। सो स्टूडेंट्स अगर डोमेन में ऐसी वैल्यू रियल नंबर से -1 -2 0 भी ले सकते हैं। तो यहाँ जब पुट करेंगे बच्चों यहाँ पर हम सारी वैल्यूज, तो भी मॉड x मॉड क्या रहता है, पॉजिटिव लिखता है, बाहर लगा है नेगेटिव, तो हम x कुछ भी पूरा रियल रख सकते हैं, ये पूरा पॉजिटिव रियल आएगा स्टूडेंट्स, और बाहर लगा है नेगेटिव तो नेगेटिव नंबर सारे आ जाएंगे। इट मींस रेंज ऑफ f फ्रॉम y इक्वल टू माइनस मॉड x, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, जो रेंज आएगा फंक्शन का इज इक्वल टू r माइनस r प्लस, मतलब अगर रियल नंबर्स की पूरे रियल नंबर्स में से पॉजिटिव रियल नंबर्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज, वैसे भी यहाँ से देख रहे हैं इसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और इसमें माइनस आगे लगा है, तो जो हमारे पास रेंज y बचेंगी इमेज बचेंगी वो सिर्फ नेगेटिव वाले ही रियल नंबर्स रहेंगे। तो यही हमारे पास इसका रेंज है। सो स्टूडेंट्स दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट, now students second part, fx equal mod x minus 1 mod x minus 1 upon x minus 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट डोमेन, यहाँ पर डिनोमिनेटर आ गया। अब हमारे पास डोमेन निकालने के लिए क्या होना चाहिए, कभी भी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो फॉर डोमेन x minus 1 not equal to 0, so x not equal to x minus 1 not equal to 0, so x not equal to 1। 1 को छोड़ करके जितना भी पार्ट होगा वो हमारे पास डोमेन का पार्ट है। सो डोमेन ऑफ f is equal to r माइनस, तो ये हमारे पास इसका डोमेन है। रियल नंबर से सारी वैल्यूज ले सकते हैं क्योंकि सारे नंबर वैल्यूज लेंगे, सिर्फ 1 को छोड़ करके ये डिफाइन हो जाएगा फंक्शन, ये डोमेन है। अब इसके रिस्पेक्ट में जो हमारे पास ये सारे 1 को छोड़कर सारे एलिमेंट्स आएंगे रियल नंबर्स के डोमेन में। डोमेन के एलिमेंट्स क्या होंगे, द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर द वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। नाउ अब उन पॉइंटों के रिस्पेक्ट में जो इमेजेस बनेगी फंक्शन की वो हमारे पास रेंज हो जाएगा। तो अब हमारे पास देख लें, इफ वी पुट x इक्वल टू 0 देन f0 equal to mod 0 minus 1 upon 0 minus 1, which gives mod is positive 1 upon negative 1, which is minus 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम if we put something greater than 1 that is 2, then f2 is equal to 2 minus 1 upon mod 2 minus 1 upon 2 minus 1, which gives 1 upon 1 positive 1। अब हम कुछ भी रख लें, अगर हम माइनस, यहाँ पर हम -1 भी रख लेते हैं इस जगह पे x इक्वल टू -1 रखते, -1 -2 देयर इज ऑलवेज -1 आता है। तो अगर हम लोग 1 से पीछे की तरफ वैल्यू रखेंगे, 1 से लेस वैल्यूज ऑफ x given the image at -1 and greater value of x given that image of +1। so students क्या हो गया इसका, it means range of f
always. So range of f, जो रेंज होगी f की वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये सारी वैल्यूज हो जाएंगी -1 से +1 इज इक्वल टू -1 टू प्लस, ये रेंज हो जाएगी क्योंकि बार बार क्या आ रहा है -1 1 -1 1 सो -1 1 ही आएगी इसकी, -1 और 1. दिस इज द रेंज ऑफ दिस. अब एक्चुअल में स्टूडेंट्स यहाँ पर रेंज ऑफ f की होगी -1 से 1 नहीं, एक्चुअल में -1 और 1 होगा. इसमें क्या करेंगे, सिर्फ दो एलिमेंट की होंगे -1 1. जैसे कि इसमें 1 को छोड़ करके पूरा डोमेन था, यहाँ पर भी -1 और 1 ही होगा, दो एलिमेंट्स इसकी रेंज आएगी -1 1. तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस. सिमिलरली स्टूडेंट्स अल्फा fx equal mod x. So students, here this is in the mod. So mod function is always positive, given the positive. So domain of f, we can take any number of real numbers. अगर कुछ भी रियल नंबर्स x का कोई वैल्यू लेंगे तो fx ये फाइनाइट डिफाइंड होगा, एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी. So domain of f is all values of x such that fx is defined. So domain of f is equal to real numbers. So अब हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर रखेंगे जब हम लोग, तब भी जो रेंज निकलेगा वो तो रेंज, रियल नंबर नेगेटिव रखते हैं पॉजिटिव रखते हैं, हम एक्स की नेगेटिव रखते हैं पॉजिटिव रखते हैं, जीरो रखते हैं. रेंज जो निकलेगा मॉड की वजह से क्या निकलेगा, सब पॉजिटिव निकलेगा. सो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि ये मॉड फंक्शन है, पॉजिटिव कर देगा इसको. सो स्टूडेंट्स, these are some problems how you can find the domain and range of the